जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करना चाहनी हाँ। सब तो पहला इस चीज़ का, मेरे ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੇਕ ਆ। ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ 5:30 ਤੋਂ 7:30, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ 777, 999, 000, 777 ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ही मेरी बेटी आके एक दिन मैनू कहती है, मम्मा आपने 2-3 महीने आपने मुझे कहा था कि एस नाम वाले किसी व्यक्ति की डेथ होने वाली है, सत्संग आ रहा। कहती मेरी बेटी का कोई फ्रेंड है संगत जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब कि फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है संगत जी, गुरु जी ने ही ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ICU 'ਚ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ नहीं हाँ, पता नहीं तुसी मेरे को शुक्राना करवा रहे हो। हूँ गुरुपा, मेरा बेटा काफ़ी समय से बीमार है, वो अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर सकता। गुरुपा मुझे क्षमा करें, मुझे शुक्राना करना नहीं आता। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं अपने बेटे के बारे में बता रही हूँ। जब भी मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ वो नहीं पीता गुरुपा, और वो बोलता है कि मेरे ऊपर टोने टोटकी करती रहती है। क्या गुरुपा आप, एक माँ भी अपने बच्चों के ऊपर टोने टोटके कर सकती है? गुरुपा जब भी मैं उसको चंदन तिलक लगाती हूँ तो वह ऐसे गुस्से में बोलता है। गुरुपा पहले तो वो कई दिनों से लगवा रहा था और जल प्रसाद भी मैं उसको देती थी। अब वो पूरी रात जागता है और दिन में रात में फ़ोन चलाता है और दिन में पूरा दिन सोता है, कोई काम नहीं करता। गुरुपा अपने हाथों से ऐसे अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बंद करके रहता है। गुरुपा पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ उसकी समझ में नहीं आता। गुरुपा आप मुझे क्षमा करें, गुरुपा मुझे शुक्राना करना नहीं आता। मेरे पति अंकल भी उनके एक पैर में दर्द है, वो अपने पैर से इस दर्द से बहुत परेशान है। गुरुपा आप उन पर मेहर करें। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो मेरा फ़ोन बंद कर देते हैं गुरुपा, और मेरा बेटा भी बोलता है 1 साल से पागल हो रही है। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती कि मैं तेरे को अपना क्या करूँ। गुरुपा अब तो वो खाना भी नहीं खा पाता ढंग से पहले एक हाथ से अपना खाना खा लेता था। गुरुपा कल मैंने देखा वो अपने हाथ से दोनों हाथों में मुट्ठी बंद किए हुए है, वो खोलता नहीं है, नींद में भी मुट्ठी बंद करके रहता है। गुरुपा पता नहीं उसको, हमें कोई सोच समझ में नहीं आता उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और कई दिनों से अब रोज ड्रिंक करके आ रहा था और सिगरेट इतनी पीता है गुरुपा, कई सिगरेट पी जाता है गुरुपा। पता नहीं उसको उसके मन में क्या है, ना हमें कुछ बताता है ना कुछ है हमारी सुनता है, अपनी मन मर्जी करता है। गुरुपा मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा।
संगत जी मुझे माफ़ कर देना और नैना। और मेरी बेटी पीजी में रहती है, वो आती है तो उस पे भी चिल्लाता है, गुरुबा घर क्या यहाँ क्या करने आई है, क्यों आई है गुरुबा। उसके साथ भी लड़ाई झगड़े करता है। ऐसा पता नहीं इसके दिमाग में क्या है गुरुबा, हमें कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी, आज मैं एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं डेली रूटीन जैसे होता है, मैं सुबह उठ के गुरुपा का अमृत बेला करती हूँ। उसके बाद डेली रूटीन अपना करती हूँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ और स्कूटी से मैं जाती हूँ अपने स्कूल। मेरा स्कूल यहाँ से, मेरे घर से कम 12-15 किलोमीटर दूर है। और संगत जी, कितना भी जल्दी करो, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड को भी जाना होता है, बच्चों को भी सुबह स्कूल के लिए जाना होता है, तो सारी तैयारियां करके निकलना पड़ता है। तो इसमें संगत जी और शंकर जी को थोड़ा सा मेरी आदत है, डेली रूटीन है, वो थोड़ा सा उनकी उनका उनका पूजा करती हूँ, उनको जल चढ़ाती हूँ, मतलब सारी चीजें करते हुए गुरुपा को दिया जलाती हूँ। उसके बाद ही मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। तो मुझे 8:30 बजे सब कुछ रेडी करके स्कूल के लिए निकल जाना होता है। संगत जी, कितना भी सोचो तभी 5 मिनट 10 मिनट पर डे कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है निकलते निकलते। तो आज मैं जैसे ही अपना बैग पैक करके स्कूटी पे बैठने के लिए बाहर आ ही रही थी, तब तक हमारे साथ के ही एक कलीग हैं, उनका फ़ोन आ गया कि ऐसा है मैडम, आप इधर से जाती हैं तो इस रास्ते पे कोई लेबर था, जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था या कुछ था, तो लोगों ने रोड को जाम कर दिया था और उसकी डेड बॉडी लेके वहाँ पे रोड पे बैठ के और रोड को जाम कर दिया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप इधर से मत जाइएगा और इधर पूरा रोड जाम हुआ है। संगत जी, मैं बहुत टेंशन में आ गई। मुझे लगा कि एक तो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में। लेट हो रही हूँ और ऊपर से ये रोड जाम है, तो मैं कैसे पहुँचूँगी? मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई, गुरुपा को प्रणाम किया और मैंने बोला कि गुरुपा मेरे अंग संग रहना और मुझे समय से स्कूल पहुँचा देना। संगत जी, मेरे स्कूल में भी मेरे जो प्रिंसिपल हैं और मेरा जो वो थोड़ा-सा उनसे मेरी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी कुछ बोला, तो उससे थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो वो थोड़ा-सा समय को लेके बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं, या खुद को भी अजीब लगता है कि अगर मैं लेट पहुँचूँगी तो उन्होंने कुछ बोल दिया, या कोई उससे बड़े कोई अधिकारी आ गए और उन्होंने मेरा एब्सेंट कर दिया, तो मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे स्कूल में भी इस तरीके का कुछ अच्छा माहौल नहीं चल रहा है संगत जी। तो मैं थोड़ा-सा घबरा गई कि अब तो मैं खुद ही 5 मिनट लेट हो गई हूँ और ऊपर से ये क्या हो गया, रोड जाम हो गया, मैं कैसे जाऊँगी? और मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं पता है। लेकिन मेरे गुरुपा सभी का सुनते हैं, वो हमेशा हमेशा अपनी संगत की पुकार सुनते हैं। अगर कोई उनको दिल से पुकारता है, वो तो तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो मेरे कलीग एक लोग थे, उनका फ़ोन आया, उनका फ़ोन आता नहीं है, बट वो निकले होंगे स्कूल जाने के लिए, उन्होंने देखा होगा कि रोड जाम है, तो उनको पता नहीं, गुरुपा ने ही उनके दिमाग में ये थॉट डाला होगा कि ज़रा-सा फ़ोन करो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि मैडम इधर से मत जाइए आप। तो मैंने बोला कि मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँ? मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और आप जान ही रहे हैं कि मेरे स्कूल का माहौल भी नहीं अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, यहाँ तक आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। मैं वहाँ स्कूटी से गई, फिर उन्होंने मुझे अंदर-अंदर कोई दूसरा रास्ता था जो कि संगत जी मुझे नहीं मालूम था।
उन्होंने मुझे मेन रोड पे वहाँ से दूसरे रास्ते से निकाल दिया। फिर मैं स्कूल पहुँची तो वहाँ का माहौल कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक सर थे। मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी दिक्कत हो गई, इसलिए मुझे 5-10 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैं पहुँच गई थी। तो मुझे कोई इस तरीके से कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये सब में ऐसे हैं मेरे गुरुपा कि उनको पहले से पता होता है कि मेरी बेटी को जाना है और इस तरीके से ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अगर संगत जी वो मुझे फ़ोन नहीं करते और मैं पहुँच जाती तो मुझे बहुत परेशान होना पड़ता और मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 5-6 मिनट का लेट हुआ और मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया। गुरुजी ने ही ठाट डाला होगा कि आप तभी उन्होंने फ़ोन किया, नहीं तो वो कभी फ़ोन नहीं करते हैं। उनको ये हम संगत जी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है या आगे क्या होगा या रास्ते में क्या होगा या मेरी इन फ्यूचर लाइफ में क्या होगा। बट हमारे गुरुजी जानो जहान है, वो सब कुछ जानते हैं। और जब हम गुरु पे पूरा विश्वास करते हैं तो वो हमको आगे का रास्ता ऐसे ही दिखाते हैं। जैसे कि गुरुजी ने आज मेरे साथ इतना बड़ा सत्संग हुआ, गुरुजी ने मेरा साथ दिया। ये संगत जी बहुत छोटी-सी बात है, एक छोटा-सा सत्संग है, बट बहुत बड़ी बात है। ऐसे रोज़ पर डे कुछ ना कुछ घटनाएँ घटित होती रहती हैं और जब से गुरुजी आए हैं, उन्होंने उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है और इसी तरीके से मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि वो हमारी जितनी प्यारी संगत है, जितने लोग हैं, उन लोगों का की भी सर पे ऐसी ही कृपा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ कि आज गुरु पिताजी ने इतनी अद्भुत ब्लेसिंग दी है संगत जी। ऐसा है कि चाय प्रसाद शाम को हमारे घर में रोज़ बनती है, तो संगत जी वो चाय प्रसाद मैं नहीं बना पाती, बच्चे बनाते हैं। मतलब मेरी छोटी बेटी अक्सर करके चाय प्रसाद बनाती है, बड़ी बेटी बना देती है संगत जी, और इलायची वाली वैसी चाय बनती है गुरु जी पिता की, रोज़ संगत जी भोग लगता है। तो मैंने कई बार देखा, मैंने कहा गुरु पिताजी, एक बारी बस मुझे चाय प्रसाद में ओम दर्शन हुए थे, तो मैंने कहा गुरु पिताजी सबको दर्शन दे दिए। मेरे मन में चलता था कि ओम दर्शन चाय प्रसाद में हमें नहीं दिए, बाकी तो बहुत बारी ओम दर्शन दिए, मुझे बहुत बारी दिए संगत जी ओम दर्शन, तो गुरु पिताजी ने धन्य है, धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। न जाने मेरे कितने कष्टों को काटा होगा, न जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी होंगी मुझे। और संगत जी फिर क्या हुआ, आज ना चाय प्रसाद में जब उसने लगाया और जब उठाया तो चिल्लाने लगी, मम्मा देखो कितना प्यारा ओम दर्शन दे रहे गुरुजी महाराज चाय प्रसाद में, ओम दर्शन दे रहे गुरुजी महाराज चाय प्रसाद में। संगत जी मैं जल्दी से भागती हुई आज देखा, बड़े प्यारे ओम दर्शन, बिल्कुल साफ ओम बना था चाय प्रसाद में। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बेटी बहुत खुश हुई, कहती क्या देखा ये ब्लेसिंग मेरे लिए थी, मेरे को गुरुजी महाराज ने ये ब्लेसिंग दी है। बहुत खुश हो रही थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए। वो चाय प्रसाद संगत जी हम सब ने बांट के पिया। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो उसी से रिलेटेड एक मैसेज भी गुरु पिताजी ने अभी दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। वो मैसेज ये है कि संगत जी वो कह रहे हैं कि बेटा आज मंगलवार को तुझे मेरे दिव्य दर्शन मिलेंगे, आज तू जो मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि आज तूने अपने पिता को दिल से याद किया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं बहुत खुश हूँ, अब तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, और नाल उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करके अपनी स्पेशल ब्लेसिंग भी देता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत खुश हूँ बाबा, आप जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या आपसे कहती हूँ, मुझे क्या चाहिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे बाबा। बस वही विनती है आपसे, वही प्रार्थना है मेरी, वो विनती स्वीकार करो बाबा, मैं वही चाहती हूँ, बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। मैं अपने लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मांग चुकी हूँ बाबा,
और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा बस उसकी ज़िंदगी संवारो मेरे बाबा। हे परमपिता परमेश्वर, आप कहते हो कि सत्संग अगर जो कामना मन में है उस कामना को अगर पूरा करना है, उसको रख कर मन में सत्संग कर, सत्संग शेयर कर, तो तेरी वो कामना ज़रूर पूरी होगी। आज मैं वही कामना अपने मन में रख कर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा, मेरी वो कामना पूरी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, उसके जीवन भी खुशियाँ भर दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और देखो संगत जी, गुरु पिताजी कह रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, सभी को शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। गुरु पिताजी कह रहे हैं कि बेटा शुक्राना करने वाला राजाओं जैसा जीता है और शुक्राना ना करने वाला भिखारियों जैसा। तो शुक्राना करने की आदत सभी डाल लो, हर समय अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करो। क्यों ना करें शुक्राना, जितना वो देते हैं, जितना छप्पर फाड़ के उन्होंने हमें दिया है, जितनी वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर संकटों से निकालते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ दिया है संगत जी। जरा अपने से नीचे वालों को देखो और फिर एहसास होगा तुम्हें कि हमें क्या कुछ नहीं मिला है, सब कुछ मिला है। उस दाता ने हमें सब कुछ दिया, इतनी मेहर बरसाई हम पर और बरसाते चले जा रहे हैं। अनंत अनंत कृपा है उनकी हम सब पर, हम सभी संगत पर। तो पूरे दिल से, पूरी आत्मा से हर समय उसका शुक्राना होना चाहिए, हर श्वास में शुक्राना होना चाहिए, क्योंकि अब जो श्वासें हमारी है वो हमारी है ही नहीं और वो हमारी कभी थी ही नहीं। लेकिन अब एहसास कर लो कि अब हमारी नहीं है, क्योंकि अगर गुरु पिताजी हमें ना थामते तो हम तो कब के, हमारे बच्चे रुल गए होते, हमारे परिवार बिखर चुके होते, हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। आज ये सांसें सब कुछ उन्हीं का दिया है, सब उन्हीं का है। अब हमारा कुछ नहीं, सब मेरे मालिक का। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। मैं तो जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी, आज गुरु पिताजी कहते हैं आज तेनू मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग ब्लेस कर दी है और बरकतें ब्लेस कर दी हैं, शुक्राना जरूर करी। बेटी आज मंगलवार का दिन है और आज तेरे घर पर गुरु कृपा दस्तक देने वाली है, शुक्राना जरूर करी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बस तू एक बार सच्चे मन से शुक्राना बोल दे, तेरे ऊपर संकट का साया नहीं रहेगा, क्योंकि आज पंच शक्ति तेरा पहरा है। और जल्दी से ये संदेश को, ये ब्लेसिंग को आगे भेज, तेरा कल्याण तो निश्चित है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है बाबा। हर पल हमारी रक्षा करते हो, हर पल हमारे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो, हर दुख हर संकट से हमें बचाते हो बाबा। हम सबको कितना प्यार करते हो मेरे बाबा, मेरे मालिक। हम सबका इतना ख्याल रखते हो, हमारे लिए अपने आप को कभी अपना ख्याल नहीं रख पाते। आप कितने संकट मोल लेते हो। हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करो बाबा, हम पर कृपा करो बाबा, और ऐसा आशीर्वाद दो कि हम कभी वो गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से हमारे पिता को इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, इतने संकट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, कितना दर्द झेलना पड़ता है। हमारी उन सभी गलतियों को क्षमा करो बाबा, हम पर ऐसी कृपा करो, हम कभी ऐसी कोई गलती ना दोहराएं, हम आपकी नेक बच्चे बन सकें, अच्छे बच्चे बन सकें, अच्छी संगत बन सकें और अपने गुरु पिताजी का मान रख सकें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मैं तेनू हर दम देख रहा, तू एक कदम चल, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बाबा हम तो वो एक कदम चलने के लायक भी नहीं है, बिना आपके सहारे के हमसे वो एक कदम भी नहीं चला जाएगा, वो एक कदम भी आपको ही उठाना पड़ेगा मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज बालाजी महाराज की बड़ी प्यारी ब्लेसिंग मिली है, और मेरे हनुमत जी महाराज की, बालाजी महाराज की, मेरे नीम कोरली वाले बाबा जी महाराज की भी ब्लेसिंग मुझे मिली है संगत जी। वो कहते हैं कि जैसे अर्जुन को कभी संशय नहीं रहा श्री कृष्ण के होते, तू भी कभी संशय मत रखना मेरे होते। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। कभी नहीं रखूँगी बाबा जी, कभी नहीं रखूँगी, मुझे पता है आपकी कृपा हर पल मुझ पर बरसती है। आप भी मेरे गुरुजी महाराज की तरह मुझ पर कृपा करते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद का भी लख लख धन्यवाद, लख लख शुक्राना। जय श्री राम बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, अगर तुम शुक्राना कर देते हो तो। संगत जी, इधर बहुत गुरु पिताजी के बहुत मैसेज मिले हैं मुझे कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। अब देखो गुरु पिताजी कौन सी खुशखबरी देते हैं, शायद वो वही खुशखबरी दे दें
जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार है, क्योंकि गुरु पिताजी से मेरे हृदय की, मेरे मन की कोई भी हालत, कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रहती कभी भी। वो मुझसे बेहतर मुझको जानते हैं संगत जी। मेरे बाबा जी कहते हैं तेरा तो मैं मौन भी पढ़ लेता हूँ, और संगत जी मेरा ही क्या, वो तो सबका मौन पढ़ते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो सबके दिल की सब कुछ जानते हैं संगत जी। और वही सब अपने बच्चों को समय आने पर सब कुछ ब्लेस करते हैं संगत जी। जो जिसकी चाहत होती है ना, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जो जैसी भावना रखता है मेरे ठाकुर, मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज, उसको वैसे ही जीवन देते हैं, वैसे ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। सच में संगत जी, गुरु जी महाराज अपने ऐसे ही हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं नतमस्तक होकर आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ, बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे जीवन में आने के लिए, अपने श्री चरणों को मेरे जीवन में डालने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, मुझे अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाने के लिए, और भी न जाने कितने मेरे शत्रु हैं उनसे मेरा रक्षण करने के लिए, बल्कि हम सब संगत परिवार का रक्षण करने के लिए, छोटे छोटे इन बाल बच्चों का, जो भी आपके नाती नता है, उनका सबका भविष्य बनाने के लिए, उन सब का हाथ थामने के लिए, उन्हें राह दिखाने के लिए, हम सबको एक नेक इंसान बनाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इन सब चीज़ों का आपका बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, आजकल गुरु पिताजी मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं, इतनी ब्लेसिंग के सत्संग सुनवाते, इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनवाते हैं। देख तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरे को मैंने बरकतें ब्लेस कर दी, तेरे को मैंने खजाने भर भर के दे दिए। और संगत जी, बीमारियों से भी रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं, और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी, एक बार फिर से उन्होंने सोना खोने का सत्संग सुनवाया, वो भी मैंने सुना। इतने प्यारे प्यारे मुझे सत्संग मिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकते। और ये सत्संग आपको तभी मिलते हैं जब गुरु जी की कृपा आप पर बनी होती है, अगाध कृपा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं शहंशाहों वर्गी जिंदगी जीता है जो शुक्राना करना सीख लेता है। सच में संगत जी, और आत्मा से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। आप अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करके तो देखो आपकी आत्मा में कितनी संतुष्टि होगी, आपकी कितनी खुशी होगी, और आप में भी नम्रता बढ़ेगी। आपके अंदर की जो अकड़ है, जो भी आपके अंदर ये भाव है कि नहीं ये सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं, ऐसी भावनाएं आपके अंदर से ख़त्म होती चली जाएंगी, मिटती चली जाएंगी। यानी कहते हैं ना, आपका भांडा अगर आपको साफ़ करना है ना अंदर से, जो कोई गुरु पिताजी कहते हैं कि सबका भांडा साफ़ होना चाहिए, तो आप धन्यवाद करना सीख लो, शुक्राना करना सीख लो। जो मालिक ने जो आपको बख्शा है, जो भी कुछ है आपके पास, उसका शुक्राना करो, उसका धन्यवाद करना सीख लो। आप जब ये सीख लेते हो ना, तो आपका अंदर से मन साफ होने लग जाता है। आप कोई भी अच्छी आदत जो अपने जीवन दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल कर लेते हो, एक अच्छी आदत आपको 10 अच्छी आदतों से जोड़ देती है, लेकिन एक पाप आपको 100 पाप बढ़ा देता है संगत जी। लेकिन याद रखना, एक अच्छाई आपकी 100 पापों पे भारी होती है। इसीलिए कहते हैं अच्छाइयाँ कम बढ़ती हैं, बुराइयाँ जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन एक अच्छाई 100 बुराई को मात दे सकती है। इसलिए हर हाल में ही अच्छाई का वजन ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सदकर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे गुरु देखो कौन है, स्वयं भोलेनाथ। स्वयं कहते हैं भोलेनाथ महागुरु, गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, फ़कीरों के फ़कीर, सबसे ऊंचे हमारे गुरु हैं, बल दर्जे के। अब हम क्या कहें संगत जी, इससे बड़ा कोई था नहीं, ना कोई है, ना कोई होगा। और ऐसे गुरु पाकर भी अगर हम नादानियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और गलतियों को ही अपनी आदत बना लेते, तो संगत जी हमारा जीवन, अब हम क्या कहें, सब खुद ही समझदार है ना कि कभी सुधर नहीं सकता, कभी वो नर्क से बदतर बन जाएगा। और अगर आप हमेशा ये सोच के चलो, और हमेशा ये सोच के चलो, क्योंकि चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। जहाँ कहीं गलती हो या गलती करने का आपको संशय भी लग रहा हो ना, एक बार दिमाग में ये बात डाल लेना, नहीं हम गुरु पिता के बच्चे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी, आप कर नहीं पाओगे, ये गारंटी है। और जब आपके मन में ये भय आ जाए ना, तो समझ लेना आपको गुरु पिताजी ने पकड़ लिया है। यही सबसे बड़ी पहचान है कि आप अगर उस गुरु के बच्चे हो, आप अगर उन पिता के परमेश्वर के बच्चे हो, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, कभी कोई गलत काम सोच भी नहीं पाओगे संगत जी। सोच बनते ही आपको अपने ऊपर धिक्कार आएगी, और आप कहोगे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके बच्चे। तो समझ लेना गुरु पिताजी ने आपके अंदर घर कर लिया,
आपको पकड़ लिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब में इतना परिवर्तन लाने के लिए, हम सबको पशु से इंसान बनाने तक की यात्रा करवाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरु ही गति देता है, गुरु ही जीना सिखाता है, गुरु ही अच्छी ज़िंदगी देता है, गुरु ही उत्थान करता है, सब कुछ गुरु ही भगवान से मिलाता है, गुरु ही सब कुछ करता है। गुरु ही कहते हैं, नहीं तभी तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो मेरे गुरुदेव, शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। अब अंत में वही जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़पता हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी सदा मेरे साथ रहना बाबा। सर्वदा भला करना, सबके भंडारे भरना, सबका कल्याण करना। महालक्ष्मी माँ सबके ऊपर कृपा बनाए, माता रानी अन्नपूर्णी माता सबके भंडारे भरें, सभी के घर में खुशियाँ सदा के लिए स्थायी हो जाएं, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, आगे बढ़े, माता पिता को गर्वित करें, सम्मानित करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता सदा बढ़ती ही चली जाए। गुरु जी महाराज की कृपा झरने की तरह सबके ऊपर बहती ही चली जाए। करुणा बहे, ममता बहे और उनकी कृपा हर घर में बहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर घर में मेरे गुरु जी महाराज का जयकारा गूंजे, हर घर में सत्संग हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ये मेरी विनती, यही मेरी प्रार्थना, इसे स्वीकार कीजिए अपने श्री चरणों में। सर्वदा भला, सबका कल्याण मेरे बाबा, समस्त जीवों का भी कल्याण हो, उन पर भी दया करिए बाबा जी, उनके प्रति भी सबकी मन स्थिति बदल दीजिए, सभी उनसे प्रेम करे, कोई उन्हें दुत्कारे ना, अकारण कोई सताए ना, उनको कोई मारे ना बाबा। बस यही मेरी विनती है आपसे, इसे भी स्वीकार कीजिए बाबा। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपा मुझे क्षमा करें। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे बोलने में तो कृपा मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी गुरुपा कहते हैं, तुम्हें आज से 7 दिन तक के लिए एक संकल्प लेना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और दिन में कई बार खुद से बोलना है, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, इससे आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा। साथ संगत जी, ये मैसेज मुझे लगता है गुरुपा और भी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपना सारा दिन में बहुत बार ऐसे ही बोलो कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। दिन में कई बार खुद से बोलना है। तो गुरुपा कहते हैं इससे आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा, यकीन नहीं। कुछ बुरा भी होना होगा ना तो वो भी अच्छा हो जाएगा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। साथ संगत जी, एक शुक्राना मेरे मालिक का इस बात का है कि मेरे मालिक ने को कोई दुर्घटना होने के चांस दिख रहे थे, तो वो मेरे मालिक ने हमें बचा लिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। साथ संगत जी, गुरुपा इतने शुक्राने करने के मौके देते हैं हमें जब हम अपने गुरुपा से जुड़ जाते हैं और हमें गुरुपा अपने साथ जोड़ लेते हैं। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। साथ संगत जी, गुरुपा हमें अमृत वेले से जोड़कर हमारे दुखों को भी सुखों में बदल देते हैं। दुखों को सुखों का मतलब होता है कि हमारे गुरुपा जो हैं वो हमें दुख तो आते हैं, ये नहीं है कि हमें दुख नहीं आते, दुख आते हैं, लेकिन उनमें भी हमें ना जैसे सुख की अनुभूति होती है। वो कैसे? गुरुपा हमें इतना सब्र, इतना संतोष दे देते हैं ना कि हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि ये बुरा हो रहा है हमारे साथ। हमें अपने गुरुपा की रहमतों में संतोष रखते हुए वो मुश्किलें पार हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि हमारा गुरु हमारी मुसीबतों से बड़ा है। वो मुसीबतें हमें चींटी भांति लगती हैं। इतना सुकून, धैर्य, संतोष मन में आ जाता है ना साथ संगत जी, बस
बयान नहीं कर सकते। एक गुरपा आपका इस बात का भी शुक्राना है कि आपने मेरे बेटे का चेस कंपटीशन था, मेरा बेटा तो क्या आपका धोता ही है गुरपा, और आपने मुझे पहले से ही कह दिया था कि तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करेगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरा तो क्या आपका ही धोता है, आप ही करने कराने वाले हो मेरे मालिक। उस बात का अनंत कोटि शुक्राना। जब मैं इसकी पीटीएम में गई तो मैडम ने से पूछा कि इसके चेस कंपटीशन का विनर कौन है, तो मैडम कहती उसका विनर आपका बेटा ही है। शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मेरे मालिक ने ही कहा था। मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं इसका चेस कंपटीशन कैसा गया है, ये फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसने मेहनत तो बहुत की थी, तो मेरे गुरुपा ने इसकी मेहनत का ऐसे फल दे दिया और इसने वाकई हमारा नाम रोशन किया। जब इसकी टीचर ने इससे पूछा कि तुम्हें चेस किसने सिखाई, तो इसने कहा कि मुझे चेस मेरे पापा ने सिखाई है। तो इससे मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत खुशी हुई। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। आपकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिला मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। सासंग जी, एक शुक्राना इस बात का है कि पहले मेरे बेटे का स्कूल में मन नहीं लगता था, अब धीरे धीरे उसका मन लगने लग गया है। अब उसे ये स्कूल अच्छा लगने लगा है, जो गुरुपा ने उसे ब्लेस किया है। गुरुपा की रहमत से ही वो इस स्कूल में एडमिशन पा पाया है। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। है आपकी बेटी आपको हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, पूरे मन से, सच्चे दिल से, हर पल, हर श्वास से, रोम रोम से आपका शुक्राना करती है, शुक्राना करती है, शुक्राना करती है। संगत जी, परसों करवा चौथ था और गुरपिता ने मेरा इतना अच्छा करवा चौथ मनवाया। इसके लिए मैं गुरपिता का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, यहाँ जहाँ पे जीरकपुर में मैं रह रही हूँ सोसाइटी में, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ। वैसे तो हर जगह अच्छे तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा पंजाब का माहौल होता है इस साइड, तो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे बड़े पार्क में डीजे वगैरह लगाते हैं। तो मैं और दीदी गए हुए थे वहाँ बड़े पार्क में, जो जिन दीदी ने मुझे गुरपिता से जोड़ा था, गुरपिता का आदेश हुआ था, उनके थ्रू मेरा हाथ पकड़ा था गुरपिता ने। इसके लिए मैं दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारी फ्रेंड थी मेरी वहाँ पे, तो डीजे पे नाच गाना खूब मस्ती करते हैं हम। तो संगत जी, डीजे का वॉल्यूम बहुत तेज था और क्या होता है, मैक्सिमम मेरे कान ना बजने लगते हैं, ऐसे खरखराट की सी आवाज़ आती है, ऐसे होता है जैसे गूंज रहा हो मेरे कानों में ना। तो वहाँ जब मैं नाच रही थी तो मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ और मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ मेरे कानों में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साइड वाले दीदी बोल रहे थे कि कान यार बजने लग गई। तो मैंने एकदम से सोचा यार मेरे तो आज कान बजे ही नहीं, जबकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी कोई साउंड वॉल्यूम होती है तो मेरे कानों में बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, बहुत बेचैनी होने लगती है। फिर हम मस्ती करके घर पे आ गई। तो संगत जी, कल गुरपिता का सत्संग था सेखो बैंकेट में, वहाँ पे मैं और हस्बैंड गए थे। गुरपिता ने अपनी लंगर प्रसादी हमें खिलाई इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से। उसके लिए मैं गुरपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरपिता के इतने अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल नज़रों के सामने थे। बार बार ऐसे मन हो रहा था कि गुरपिता साक्षात गद्दी पे हूँ और मैं उनके चरणों के पास बैठ के उनसे बातें कर रही हूँ, ऐसा मन के अंदर भाव आ रहा था। सब कुछ भाव लाने वाले संगत जी गुरपिता ही हैं। वो अपने मन की
मन का भाव सब जानते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। और मैं तो यही बोलूंगी कि चलाने वाले भी वही हैं, क्योंकि गुरुपिता तो अंतर्यामी है। तो संगत जी वहां पे पहले तो मैं और हस्बैंड पीछे बैठे रहे कुर्सी पे। फिर मेरा मन था कि मैं गुरुपिता के साथ आगे जाके बैठूं, बिल्कुल नजदीक स्वरूप के सामने। तो हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं यहीं बैठे रहते हैं, यहीं देखते हैं, मेरा पैर थोड़ा सा सुन हो जाता है। बट मेरा मन था आगे बैठने का। तो गुरुपिता तो जानी जहान है। मैंने हस्बैंड को बोला कि ठीक है यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा बेमन से बोला कि हाँ ठीक है। पता नहीं गुरुपिता ने हस्बैंड के माइंड में डाला कि इसको आगे बैठना है तो उसको आगे लेके जा। तो हस्बैंड ने थोड़ी देर बाद के बोला कि जब हमने उस टाइम गुरुपिता का चाय प्रसादी और ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद का ले लिया था, उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि चलें आगे चलें। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ चलो, मेरे को और क्या चाहिए था, मेरे को तो गुरुपिता के दीदार करने थे, बिल्कुल उनके पास बैठकर। क्योंकि मेरे मन को सुकून तभी मिलता है जब मैं गुरुपिता के पास होती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको निहारती रहती हूँ। तो हम जाके आगे बैठ गए। बस वहाँ पे शब्दवाणी चल रहे थे, उसमें सुन रहे थे। जब शब्दवाणी पूरे हो गए तो मैंने थोड़ा देखा साइड में, तो हस्बैंड थे ही नहीं। ये चीजें हमें बाद में महसूस होती है संगत जी, कि गुरुपिता ने ही मुझे वहां पे बैठाया था और मेरे हस्बैंड वहां से खड़े होके चले गए। तो ओनली मुझे ही बैठाया था कि हाँ ये मेरे पास बैठना चाहती है, इसका मन है। तो उसके बाद संगत जी बिल्कुल मैं पास में बैठी थी, वहां पे जो डेकोरेशन थी गुरुपिता के स्वरूप लगे हुए थे बिल्कुल गद्दी के पास। तो साउंड वॉल्यूम इतना तेज था वहाँ का कि मतलब कि मेरे कानों में, अगर मैं नॉर्मल पहले की तरह होती तो मेरे कान बहुत बजते, बहुत ज़्यादा ऐसे खरखराट की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा गूंजने लगते हैं मेरे जो अंदर कान के पर्दे होते हैं ना वो। तो उस संगत जी वॉल्यूम इतना तेज था और फिर भी मेरे कानों पे कुछ असर नहीं हो रखा था, आर पार आवाज़ जा रही थी। तो मैं इतनी शॉक हो गई कि गुरुपिता ने शायद मेरा वो कष्ट काट दिया है संगत जी। गुरुपिता इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरा कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया गुरुपिता, आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता। तभी तो संगत जी मैं कई बार बोलती हूँ कि गुरुपिता की रहमतें अपार बेअंत हैं। निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं गुरुपिता। कई बार कुछ रहमत का तो हमें पता चल जाता है, कुछ का हमें पता भी नहीं चलता, और कुछ का हमें बहुत लेट पता चलता है कि गुरुपिता ने क्या रहमत हमारे ऊपर की है। गुरुपिता मैं हर बार बोलती हूँ कि कहाँ से लेकर आऊं वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना मेरे रब, मेरे खुदा, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, सब कुछ आप हो मेरे गुरुपिता, सब कुछ आप हो मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर। मैं तो बस यही बोलूंगी, सांसों दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। गुरुपिता कोई भी मेरी श्वास खाली ना जाए, मैं सांसों के द्वारा ही आपका नाम जपूं, आपका नाम सिमरण करती रहूं हर पल हर श्वास। मुझे हमेशा आपके सिमरन की दात बख्शना, हमेशा सिमरन करवाते रहना गुरुपिता। जिस भाव, जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं गुरुपिता, वैसा ही निस्वार्थ भाव का बेअंत अथाह प्रेम आपकी बेटी आपसे करती है। मेरा भक्ति, मेरा प्रेम और बढ़ाना और मेरा प्रेम अथाह बेअंत हो जाए, ऐसी मुझे ब्लेसिंग देना गुरुपिता। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपिता,
बस आपका प्यार चाहिए, आपका नाम सुनना चाहिए। बस संगत जी, मैं आज के अमृत वेले में इतना ही मेरा गुरुपिता का आदेश था, यही मेरा सत्संग था। गुरुपिता, मेरा शुक्राना सत्संग आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। अगर आपकी नादान मूर्ख बेटी से शुक्राना करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप सब भी मुझे क्षमा करना अगर कोई भूल हो गई हो तो। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरे तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। फिर आऊंगी अगले संडे अमृत वेले शुक्राना में। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने संडे का तो बोल दिया कि संडे को अमृत वेले में आऊंगी, लेकिन ये तो गुरुपिता ही जाने कि मैं संडे को आऊंगी या उससे पहले गुरुपिता शुक्राना सत्संग करवाएंगे। ये सब कुछ तो गुरुपिता के ऊपर है, क्योंकि करने कराने वाले संगत जी गुरुपिता ही हैं। गुरुपिता ही महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। तो जय संगत जी, जय गुरुपिता।